Everyone. Okay, so let's quick recap the yesterday class. So yesterday we have seen that the issue with the traditional routing, right? So if I talk about the traditional routing, we have seen that everything, right? Like if I talk about the management plane, if I talk about the control plane, and if I talk about the data plane, right? Everything is present in the single box, right? So what is the issue is happening with this? Everything is happening in the single box. कि हर राउटर है ना खुद का डिसीजन खुद लेता था मतलब for example if the router number one and this is router number two and this is router number three and then we have four, five and six and seven and then we have a router number eight like this, right? And for example there's a user behind the router number eight and there's a user behind the router number one. अगर router PC1 को PC2 से communicate करना है, right? So what is the best path? अगर मैं best path मानूं shortest path तो this will be shortest path, right? Like this, right? बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि सारे डिवाइस के पास खुद का ओन मैनेजमेंट प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेन होता है, डेटा प्लेन होता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि हर राउटर खुद का डिसीजन खुद से ले सकता है, राइट? सो नाउ दिस पैकेट कुड बी ट्रैवल लाइक दिस. So in this case what happened in traditional routing, you can get the suboptimal routing as well as. तो वो बेस्ट पाथ चूज करके ना करके क्या करेगा, वो सब ऑप्टिमल राउटिंग चूज करेगा. एंड दिस सी इवेंचुअली यू गेट द रिजल्ट, राइट? इवेंचुअली तुमको रिजल्ट मिलेगा, तुमको एंड टू एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट यू विल गेट द डिले, राइट? That's a biggest issue. And at the same time in traditional routing what happened, if you deploy any new applications or any new site, you this guy this like this will require the huge time, right? This is the traditional routing was a time consuming network. Like कुछ भी तुम डिप्लॉय करोगे तो तुमको टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन. और मे बी अगर कोई नया साइट हो, जो भी एक नया रिमोट लोकेशन होगा, और उस पे मे बी फॉर एग्जांपल कि वहां पे कोई बंदे जा नहीं सकते, राइट? सो तुमको पहले वहां पे बंदे को भेजना पड़ेगा. ओके. एंड उस बंदे को बोलना पड़ेगा, हे यू गाइस हैव टू डिप्लॉय द क्वालिटी ऑफ सर्विस एमपीएलएस एंड मल्टीकास्ट एंड व्हाटएवर द बीपीएस टेक्नोलॉजी यू हैव. तो तुमको एक सही बंदे को भेजना पड़ेगा जो कि सारा का सारा टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर दे. सो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हर एक साइट पे मुझे क्या हो रहा था कि एक नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ी थी. थर्ड इशू है, व्हाट वाज द थर्ड इशू? इट वाज द बॉक्स टू बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन. मतलब हर बॉक्स का खुद से तुमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यार तुमको है ना राउटर 1 राउटर 2 और राउटर 3 पे लूप बैक बनाना है, तो इस नेटवर्क इंजीनियर को क्या करना पड़ेगा? राउटर 1 पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द लूप बैक ओवर देयर, राउटर क्रिएट द लूप बैक ओवर देयर एंड राउटर क्रिएट द लूप बैक ओवर देयर. Okay, for example, I say that hey, you have to run the OSPF now, the all the router. So हर router पे जाके OSPF को configure करना पड़ेगा, and this is done by the engineers. So again, it is a box to box configuration, right? हर box पे तुमको जाके configuration करना पड़ेगा क्योंकि हर box पे खुद का management plane होता है. At the same time, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ना तुम्हारे ट्रेडिशनल राउटिंग में, तुम एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो. फॉर एग्जांपल दिस इज माय राउटर नंबर 1, दिस इज माय राउटर नंबर 2, और हियर इज द वन लूप बैक 1.0.0/8 एंड अनदर लूप बैक इज 2.0.0/8, राइट? अगर if you exchange the route, what happen, you have to run the EHRP routing protocol or anything static, कुछ भी चला लो, फर्क नहीं पड़ रहा है. But by default क्या होता था, whatever the traffic that you are sending, for example that I'm sending a traffic from source would be 1.101 and destination will be 2.2.2. This data traffic, right, this data traffic is by default not secure. By default this data traffic is not secure. So अगर तुमको security provide करनी है, then you have to run the IPsec protocol. So by default IPsec चल नहीं रहे होते हैं तो तुमको IPsec चलाने की नीड पड़ेगी, right? At the same time अगर मैं एंड टू एंड सेगमेंटेशन की बात करूं, which is not possible. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये यूजर और ये यूजर दोनों के दोनों एक ही VPN के मेंबर हो. मतलब बाय डिफॉल्ट दिस गाय लाइक दिस गाय एंड दिस गाय हैज टू बी लाइक दिस. मतलब ये बंदा इससे कम्युनिकेट ना कर पाए, ये बंदा इससे कम्युनिकेट ना कर पाए, सेल्स के बंदे सेल्स में ही कम्युनिकेट करें एंड मैनेजमेंट के बंदे मैनेजमेंट का. तुम अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VRF, राइट? तुम अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VRF. बट VRF क्या होता है? VRF में इट्स अ लोकल टू द डिवाइस. अगेन इफ आई टॉक अबाउट द डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव, you can do the VDC. If I talk about the service provider perspective, you can do the SDR, secure domain router, you can do the contexting in the security. But the problem is that कि वो local to the router है, तुमको end to end segmentation नहीं मिलती थी.
सो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है? इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने क्या लाया, वी केम विद द सॉल्यूशन इज व्हाट, एसडीएन। व्हाट, सो वी केम विद द सॉल्यूशन इज व्हाट, एसडीएन। एसडीएन तुमको क्या अलाउ करता है? एसडीएन बोलता है कि भाई फ्रॉम हार्डवेयर सेंट्रिक अप्रोच, राइट, मैं कहाँ मूव करूंगा, सॉफ्टवेयर सेंट्रिक अप्रोच में। तो पहले जो मेरा नेटवर्क था वो क्या था, पूरा का पूरा हार्डवेयर बेस्ड था। तो मैं हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क से कहाँ मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग टू द सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क, राइट। मतलब हर कुछ तुम ऑटोमेट कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू द ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ एसडीएन। व्हाट हैपन, यू विल हैव वन कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर के बेसिस पे ही सारा डिसीजन होगा। मतलब तुम बैठोगे यहाँ पे, राइट, ऑन द कंट्रोलर साइड, यू आर सिटिंग ऑन द कंट्रोलर साइड, और यहीं से तुम अपने पूरे नेटवर्क को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द दिल्ली, दिस इज द बैंगलोर, दिस इज द मुंबई, दिस इज द गोवा, दिस इज द जयपुर, दिस इज द पटना, तुम यहीं से बैठ के सारे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यहीं से बैठ के तुम सारे नेटवर्क को देख सकते हो। So from hardware-based approach, we are moving to the software-based approach, or we can say that we are moving to the controller-based networking. मैं तुमको एक और बात बता दूं, like people are like people are living in the confusion, right? Again, कि like SDN solution is like a SD access, right? We have seen that, we have seen the ACI, right, and the SD-WAN as well as. तो ऐसा नहीं है कि हमें इसी तीनों में कंट्रोलर मिलेगा, ऐसा नहीं है, right? ऐसा नहीं है कि यही जो तीनों तीनों टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोलर बेस्ड है। इवन इफ यू डू द सेगमेंट राउटिंग, राइट, दैट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ, आई कैन कॉल इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, आई कैन कॉल इट द एडवांस वर्जन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, right? Here you can also do the controller based networking. Okay, so it's not like that we are only doing the controller based networking in the SDXS or ACI or SD-WAN. It's not like that. We are doing the controller based networking in the segment routing as well. तो हमने देखा था एसडीएन क्या है, इट्स अ बिग फैमिली, अंडर दिस फैमिली वी हैव अ मल्टीपल, लाइक नो, सब फैमिली, सो वी हैव SD-WAN, we have ACI, and we have SDXS. कल मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था, लाइक यू नो हाउ यू कैन डिप्लॉय द ऑल दिस थ्री SDN solution in your network, ACI. So in SD-WAN, what happened? We have a controller name is like we'll discuss the each and every name. Don't worry about that. We have vManage, then we have a vSmart. Someone mic is on, and then we have a vBond. And in SDXS, DNAC, this is a single controller. DNAC. ऐसा नहीं है कि it's a single controller, right? You know, इसके अलावा भी तुमको नीड पड़ती है रिक्वायरमेंट, लाइक यू नीड आईस, राइट, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी डिवाइस, तुमको वायरलेस WLC की भी नीड पड़ेगी, लाइक, तो DNAC is not a single thing as DXL. You require a multiple things. You require a VXLAN protocol as well. तुमको लिप्स की भी नीड पड़ेगी, right? Depend on the requirement. In ACI we have a Epic. Sorry, it's Epic. So these are the three controllers, right? We can call it this controller in a simple language, right? We can call it this controller single language. It's a single eye. मतलब तुम यहीं से बैठ के सारा का सारा चीजें मैनेज कर सकते हो. So now we can put the one single guy over there, and this single guy is going to manage the complete SDN family. Of course, सबका अलग अलग, like you know, the graphical user interface होगा. SD-WAN का अलग GUI होगा, इसका अलग GUI होगा, और इसका अलग GUI होगा. But हाँ, eventually the result is what, you are managing the what, you are managing the WAN network from here only, you are managing the LAN network from here only, and you are managing the data center from here only. कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब तुम खुद सोचो यार, लाइक यू नो, पहले क्या हो रहा था ट्रेडिशनल राउटिंग में, कि हर एक चीज अलग था,
वैन अलग था, लैन अलग था, डेटा सेंटर अलग था, सर्विस प्रोवाइडर अलग था, सिक्योरिटी अलग था। बट अब हर चीज क्या हो गया, इट्स अ गुई बेस्ड, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। सो हम पूरा का पूरा कहाँ मूव कर चुके हैं, वी मूव टू द कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। सारा कुछ मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, पॉलिसी अप्लाई, मैनिपुलेशन, सब कुछ, इवन द लाइक यू नो यू कैन डू द एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब तुम देख सकते हो कि मेरा एक यूजर जब ट्रैफिक भेज रहा है, एक यूजर जब यहाँ से यहाँ ट्रैफिक भेज रहा है, मुंबई टू बैंगलोर फॉर एग्जाम्पल, तुम देख सकते हो कि ये ट्रैफिक जा कैसे रहा है, कितना डिले है, कितना लाइक लेटेंसी है, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। इवन जियोग्राफिकली यू कैन सी डैट कि तुम्हारा डिवाइस कहाँ प्रेजेंट है। मैंने कल दिखाया था ना कि यू हैव ऑप्शन ऑफ जियोग्राफिकली, राइट? तो तुम देख सकते हो ओके तुम्हारा ये जो डिवाइस है ये मुंबई में प्रेजेंट है, ये डिवाइस तुम्हारा बैंगलोर में प्रेजेंट है, और ये डिवाइस तुम्हारा यूके में प्रेजेंट है। यू कैन सी दैट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइक एसडीएन सॉल्यूशन। एसडीएन तुमको ये अलाउ करता है कि तुम हर चीज एक ही जगह से देख सकते हो। नाउ इन ट्रेडिशनल राउटिंग व्हाट हैपन, not routing again, traditional network. We have three types of plane. We have seen that yesterday, management plane. Then we have seen that it's a control plane, and we have seen the data plane, right? Still, this three plane will be there in the SDN solution, SD-WAN. Apart from one, we have a orchestration plane. तो मैनेजमेंट प्लेन जो तुम्हारा है वो अभी भी मैनेजमेंट ही रहेगा, जो तुम्हारा कंट्रोल है वो अभी भी कंट्रोल ही रहेगा, और जो तुम्हारा डेटा है वो अभी भी डेटा ही रहेगा। इसके अलावा मैंने एक और प्लेन को लॉन्च कर दिया, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। विल सी दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, नो वरी अबाउट दैट। अनदर डिफरेंस क्या हो रहा है, दिस इज नॉट एसडी। अनदर डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल राउटिंग में था ना, ये सारा का सारा एक बॉक्स के अंदर था। दिस माई राउटर और सिंगल राउटर, ये सारा का सारा एक बॉक्स के अंदर था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा अलग अलग बॉक्स में है। सो मैनेजमेंट प्लेन इज अ डिफरेंट बॉक्स, कंट्रोल प्लेन इज अ डिफरेंट बॉक्स, डेटा प्लेन इज इन द डिफरेंट बॉक्स, एंड इवन द ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन इन अ डिफरेंट बॉक्स। तो यहाँ पे डिवाइस की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी थी, एक, यहाँ पे कितनी डिवाइस है, चार। सो हर एक कंट्रोलर है ना एक सेपरेट डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैनेजमेंट प्लेन इन द सेपरेट डिवाइस, controller in the separate device, data plane is a separate device, and same with the orchestration plane is the separate device। और हर का काम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल प्लेन का काम मैनेजमेंट प्लेन कर लेगी, डेटा प्लेन का काम मैनेजमेंट प्लेन कर लेगी, या कंट्रोल प्लेन कर लेगी। हर का काम अलग अलग है। yesterday मैंने तुमको बोल रखा था कि लाइक जो हम लोग एसडी वैन पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेबटेला एसडी वैन, राइट? तो सिस्को ने वेबटेला से, देखो ये एसडी वैन सॉल्यूशन सिस्को ने लॉन्च नहीं किया था, लॉन्च किसी और ने किया था, लॉन्च बाय द वेबटेला कंपनी, राइट? सिस्को ने क्या किया, इसको एक्वायर किया 2017 में, एंड नाउ दिस गाइस कॉल्ड एज सिस्को SD-WAN सॉल्यूशन। तो तुम जितने भी डिवाइस देखोगे ना अपने SD-WAN सॉल्यूशन में, तुम जितने भी डिवाइस देखोगे, सो लाइक फॉर एग्जांपल द वी मैनेज, राइट, फॉर द मैनेजमेंट प्लेन, फॉर द कंट्रोल प्लेन वी हैव अ वी स्मार्ट, फॉर द डेटा sorry for the data plane we have a V-bond, sorry not V-bond, VH, and for the orchestration plane we have a V-bond। तुम अगर नोटिस करो, दिस इज फॉर द माय मैनेजमेंट प्लेन, this is for my control plane, this is for my data plane, and this is for my
ऑर्केस्ट्रेटेड प्लेन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा वी दैट्स गोना रिप्रेजेंट टू द वेप्टेला। ऐसा नहीं है कि सिस्को के डिवाइस पे हम एसडी वैन नहीं चला सकते। वी कैन रन, राइट, वी कैन रन द एसडी वैन सॉल्यूशन ऑन द सिस्को राउटर एज वेल एज विल सी दैट सीएसआर राउटर। हम देखेंगे, वी कैन रन इट, इट्स नॉट अ बिग डील। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसडी वैन सॉल्यूशन, एंड सारा का सारा काम अभी हम वेबटेला पे करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस एसडी वैन लाइक वेबटेला, लाइक मार्केट में सिस्को एसडी वैन के अलावा भी हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है, लाइक सिल्वर पिक, जूनिपर एंड द पालो। सो अगर मैं डिवाइस की बात करूं, so what are the devices we have in my SDWAN solution? First device we have, or we can say the components of the SD-WAN. The first component we have a vManage. vManage का काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि हमें मैनेजमेंट करना है। The meaning of fabric means topology. कल मैंने ये भी बताया था कि तुम्हारा जो SD-WAN solution है, like let me write on this part in the notepad. तुम्हारा जो SD-WAN solution है ओवरले नेटवर्क, राइट? सो ओवरले नेटवर्क का एक बेनिफिट क्या होता है? You can manipulate your network according to you. So for example, if you want a point-to-point network, you can do the point-to-point network. If you want to do the point-to-multipoint, you can do the point-to-multipoint. If you want to do the full mesh, you can do the full mesh. And if you want to do the partial mesh, you can do the partial mesh. By default, अगर तुम manipulation नहीं करते हो, तो हर एक राउटर जो मेरा राउटर होगा SD-WAN का, वो full mesh पे चला जाता है by default। तो एसडी वैन मेरा ओवरले नेटवर्क है, अंडरले नेटवर्क नहीं है। तो एसडी वैन कभी भी एमपीएलएस को रिप्लेस नहीं करेगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो मेरा एमपीएलएस राउटर्स जो नेटवर्क्स होते हैं ना, वो मेरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है। द एमपीएलएस हो गया, देन हो गया इंटरनेट, दीज आर माय व्हाट, दीज आर माय ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो ये कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी मुझे हमेशा चाहिए होगा। ओके, सो एमपीएलएस और इंटरनेट नॉट गोना रिमूव, राइट? हाँ, प्रोटोकॉल्स रिमूव हो रहे हैं, आई कैन कॉल इट। फॉर एग्जांपल, इन अ सेगमेंट राउटिंग व्हाट हैपेंड, वी आर रिमूविंग द आरएसवीपी प्रोटोकॉल, एलडीपी हटा रहा हूं मैं, बट टेक्नोलॉजी वही है भाई। Now, so for in the vManage, what happened? We are going to management the entire SD-WAN fabric. तो यहाँ पे तुम क्या करोगे पता है? यहाँ पे तुम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन करोगे। All the configuration from the day 1 to day 0, sorry, day 0 to day n, सब यहाँ पे करोगे तुम कॉन्फ़िगरेशन। So I can call it, this is a, like, it's a single plane of glass, or we can call it single eye, जहां से तुम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, okay, what's my username? Uh, um, so this is how we are logging to the vManage, guys. ठीक है, यहीं से हम vManage में लॉगिन करेंगे। लाइक यू विल गेट द पासवर्ड, लाइक आई विल हैव माय ओन लैब।
सो मैंने अभी सर्वर स्टार्ट नहीं करेगा, लाइक सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मे बी नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट। तो आई शो यू लाइक हाउ यू कैन लॉग इन इनटू द वी मैनेज एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द प्रैक्टिस। और ये तुम्हारा जो लैब है SD-WAN का, यू कैन डू लाइक इन योर लैपटॉप एज वेल एज लाइक यू कैन, इफ यू हैव a 16 GB of RAM, you can install it if you want. So once you log in, like once you get the user and ID and password, right, तुम यहाँ पे लॉग इन हो जाओगे। So right now you can see, right now we have like VA smart devices, we have managed devices, right? We have like this is for the control plane, this is for the data plane, this is for the orchestration plane, and this is for the management plane. तुम यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, ठीक है, बैठे बैठे कि कितने डिवाइस चल रहे हैं, कितने डिवाइस नहीं चल रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी दैट। सो पूरा का पूरा डे 1 से लेकर डे N तक का सारा कॉन्फ़िगरेशन तुम यहीं से बैठ के करोगे। विल सी द ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, व्हाटएवर द यूज ऑफ ऑल द टैब्स, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, सारा काम यहीं से हो जाएगा। तुम सब कुछ यहीं से देख सकते हो कि उस डिवाइस का हेल्थ क्या है, कितने दिनों से वो अप चल रहा है। सो ऑल दिस थिंग यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ GUI। तो GUI को डिजाइन ही इसलिए किया गया था टू लाइक ए कॉन्फ़िगर द बिग नेटवर्क। CLI was designed for the troubleshoot, GUI was designed for the configure the big network। ऐसा नहीं कि CLI से हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, लाइक पूरा का पूरा राउटिंग स्विचिंग अगर तुम देखो, पूरा CLI पे ही है। तो एंटरप्राइज नेटवर्क को CLI में इसलिए डाला गया था कि एंटरप्राइज नेटवर्क इज अ वेरी लेस, राइट, तुम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर मैं बिग नेटवर्क की बात करूँ, लाइक DC नेटवर्क, तुम्हारा पूरा GUI है, सिक्योरिटी तुम्हारा पूरा GUI है। और GUI इसलिए किया गया था क्योंकि इट इज इजी टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरीथिंग। इट इज इजी टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स द हेल्प ऑफ द GUI। GUI में क्या होता है, तुम हर चीज को पढ़ सकते हो। ओके, दिस इज द वी स्मार्ट, दिस इज द WAN एज। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होंगे क्योंकि सबको CLI का हैबिट है, बट इवेंचुअली आसान हो जाएगा। सो द वी मैनेज इज सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, जहां से तुम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एट द सेम टाइम इट्स अ सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग। एज आई टोल्ड यू दैट कि तुम यहीं से कॉन्फ़िगर करके सारा का सारा डिवाइस कॉन्फ़िगर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस कंट्रोलर पे गया वी मैनेज पे, एंड आई डिड लाइक फॉर एग्जांपल राउटर होस्ट पे कॉन्फ़िगरेशन, राइट, राउटर होस्ट पे नंबर 1। सो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा और ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पुश हो जाएगा, जो मेरे VH के डिवाइसेस है, जो मेरा डेटा प्लेन डिवाइसेस है। तो मेरा VH1, VH2, VH3 एंड VH4। सो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा राउटर होस्ट पे अब, और ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे पुश हो जाएगा, मेरे VH पे। तो दैट्स कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग। मतलब मैं सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से ही क्या कर रहा हूँ, सबको मैनेज कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहा हूँ। तुम्हारा ट्रबल शूट इजी हो जाएगा, यू कैन इजिली ट्रबल शूट एंड मॉनिटर द एंटायर नेटवर्क। एंटायर फैब्रिक तुमको हेल्प मिल जाएगा कहाँ पे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यू कैन इजिली अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। यहीं से बैठ के तुम अपना पूरा का पूरा नेटवर्क सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल यू वांट रन द 4.2 एंड तुमको 5.2 पे जाना है, ठीक है, यू कैन इजिली अपग्रेड फ्रॉम हियर। नो नीड टू गो फॉर द ईच एंड एवरी राउटर, नो नीड टू गो फॉर द लॉग इन एंड ईच एवरी राउटर। तुम वहां से अपग्रेडेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से बैठे बैठे क्या करो, सारा का सारा नेटवर्क अपग्रेड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये दिस इज माय GUI इंटरफेस, तुमको फुल प्रोग्रामेबिलिटी मिल रही है, राइट, तुम यहीं से ऑटोमेशन कर लो पूरे नेटवर्क का। Apart from this vManage device, another device we have what? VA Smart. Again, the V means what? Webteller. VA Smart device क्या करता है? डेटा प्लान के लिए यूज होता है।
It is used for the control plane role. कंट्रोल प्लेन के लिए पॉलिसीज वगैरह राउटिंग वगैरह यूज है ना इसमें। This is used for the control plane. इसका काम क्या होता है? तुम्हारे राउट्स इंफॉर्मेशन को, it help you to share route information, policy information. पॉलिसी इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो, फिल्टरिंग कर रहे हो, व्हाट एवर द थिंग्स, राइट? लाइक राउट मैनिपुलेशन, आई कैन कॉल इट फिल्टरिंग, सारा का सारा। इट हेल्प यू टू शेयर द राउट इन्फॉर्मेशन और पॉलिसी इन्फॉर्मेशन टू द VHS राउटर। तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे चीजों को समझो कि तुम कॉन्फ़िगर कहाँ पे कर रहे हो? वी मैनेज। दिस इज माय वी मैनेज बॉक्स, राइट? लेट मी डू राइट ओवर देयर। सो दिस इज माय वी मैनेज, ठीक है? बंदा यहाँ पे बैठा पड़ा है, नेटवर्क इंजीनियर। दिस इज हाउ माय वी स्मार्ट। अब यहाँ पे तुम्हारे क्या लगे? वैन एजेस राउटर लगे, वी एजेस। किसी का माइक ऑन है? अब समझो इस बात को कि यहाँ पे क्या होगा पता है कि दिस गाइज आर कनेक्टेड विद द underlay network right now. So this is how the things are working. For example, this is my MPLS network and this is the iNet and this is my MPLS. कॉन्फ़िगरेशन तुम कहाँ पे कर रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन दैट यू आर ऑल गोइंग टू डू ओवर हियर, राइट? तो तुमने फॉर एग्जांपल तुमने राउट पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, ठीक है? तुमने राउट मैनिपुलेशन कॉन्फ़िगर किया, राउट फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर किया, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन तुम कहाँ पुश करोगे पता है? वी स्मार्ट पे। तुमने कॉन्फ़िगर किया वी मैनेज पे, यहां से कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे पुश हुआ? वी स्मार्ट पे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ नेटकॉन्फ प्रोटोकॉल, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल तुमने क्या किया? वी मैनेज से सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पुश किया? वी स्मार्ट पे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मेरा वी स्मार्ट से पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हवा में उड़ के आ जाएगा वी स्मार्ट पे। वी नीड अ वन प्रोटोकॉल, राइट? एंड दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अदर नेट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब जब यहाँ पे जब वी स्मार्ट पे सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, अब इसका काम क्या होगा पता है? नाउ दिस गाय इज गोइंग टू पुश योर ऑल कॉन्फ़िगरेशन टू द VHS। ये देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करता है। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑल द डिवाइसेस एंड और वी कैन से द SD-WAN कंपोनेंट, बट we'll see how this thing will exchange, right? सो मेरा सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन वी मैनेज पे होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा वी मैनेज पे हो गया और यहाँ से क्या हुआ? सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन पुश हो गया किसको? वी स्मार्ट को। अब वी स्मार्ट को क्यों पुश हुआ? ये सीधा यहाँ से क्यों नहीं भेज दिया? भेज सकता था, रीजन नहीं भेजा बिकॉज़ दिस डिवाइस इज प्योरली फॉर व्हाट? मैनेजमेंट प्लेन। एंड दिस डिवाइस इज प्योरली फॉर व्हाट? कंट्रोल प्लेन। तो भाई मैनेजमेंट प्लेन का काम क्या है? कॉन्फ़िगर करना। वो पॉलिसी को पुश नहीं करेगा, वो पॉलिसी को किसको देगा? वी स्मार्ट को। और वी स्मार्ट क्या करेगा? सारा का सारा पॉलिसी किसको देगा? तुम्हारे वैन एजेस राउटर को। यहां पे भी एक प्रोटोकॉल आएगा, दैट्स प्रोटोकॉल कॉल एज OMP, विल सी दैट लेटर ऑन। बट हाँ, दिस इज हाउ द SD-WAN वर्क्स। तो तुम्हारा वी स्मार्ट जो है, दिस इज यूज फॉर द कंट्रोल प्लेन। इट हेल्प यू टू शेयर द राउट इंफॉर्मेशन, पॉलिसी इंफॉर्मेशन टू द VHS राउटर। तो इसका काम क्या होगा? ये इसका काम होगा, इट्स गोना फॉर्म द टनल, इट्स गोइंग टू form the tunnel between VHS router. So between the V Smart to VHS तुम्हारा एक बनेगा टनल। We'll see that whatever the tunnels we call it this guy. So हर टनल का अलग अलग नाम होगा, right? Again, I'm just giving the introduction right now. We'll go in the each and every detail of the V Smart and V Manage.
अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स का यूज क्या है। पहले क्या हो रहा था, सारा का सारा एक ही बॉक्स के अंदर हो रहा था। अभी क्या हो रहा है कि सारा का सारा चीज अलग अलग बॉक्स के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव व्हाट, वी बॉन्ड। देखो पता है, ये जो कंपोनेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम होता है ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, दिस इज यूज फॉर ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन। इसका काम क्या होता है पता है, इट इज गोना प्रोवाइड यू, इट प्रोवाइड ग्लू बिटवीन all the SD-WAN components। ग्लू का मतलब ये होता है, ग्लू मतलब ऐसे जो फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल का काम क्या होता है, जो फेविकॉल्स होते हैं या भी जो भी लाइक यू नो, लाइक व्हाट एवर द पुटिंग द स्टिकर्स ओवर देयर, तो जो फेविकॉल्स होते हैं उसको चिपकाने का काम होता है। तो ये जो ग्लू है ना, यहाँ पे सेम काम कर रहा है वी बॉन्ड का। वी बॉन्ड क्या कर रहा है पता है, वी बॉन्ड का ही ये इकलौता डिवाइस है जो तुमको प्रोवाइड करेगा सारे कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी। मतलब जब तुम्हारा वीएचएस राउटर होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल दिस माय वीएचएस राउटर, ये मेरे वीएच राउटर है। सो जस्ट गोना राइट द वीएच। तो इस वीएच पे पता है जो इंफॉर्मेशन होगा ना, वो सिर्फ वी बॉन्ड का होगा। फॉर एग्जाम्पल द वी बॉन्ड आईपी एड्रेस इज 1.1.1, राइट। और वी स्मार्ट की आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है एग्जाम्पल कि दिस इज द वी वीएचएस राउटर, वी मैनेज की आईपी एड्रेस क्या है, लाइक 1.1.1.3। एंड वी स्मार्ट की आईपी क्या है, इज लाइक 1.1.1.2। एंड वी एच की राउटर आईपी वी बॉन्ड की आईपी एड्रेस क्या है, इट्स 1.1.1। वी एच के पास किसका इंफॉर्मेशन है, वी बॉन्ड का। अब वी बॉन्ड क्या करेगा पता है, जब वी एज वी बॉन्ड को रिक्वेस्ट करेगा, हे लिसन आई नीड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोलर, मैंने क्या बोला था, ये ग्लू का काम करता है। ये क्या करेगा पता है, नाउ वी बॉन्ड इज गोना प्रोवाइड द कनेक्टिविटी ऑफ वी स्मार्ट एंड वी मैनेज। और जैसे वी बॉन्ड अपना सारा इंफॉर्मेशन वी स्मार्ट और वी मैनेज का दे देगा वी एजेस को, राइट। सो नाउ द वी बॉन्ड हैज अ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, नाउ द वी एज हैज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द वी मैनेज, दैट्स अ 1.1.3। एंड व्हाट वी स्मार्ट, इट्स 1.1.2। अब क्या करेगा पता है, ये बंदा इससे कनेक्शन तोड़ लेगा। एंड नाउ द वी एजेस इज गोइंग टू फॉर्म द कनेक्शन विद व्हाट, वी मैनेज एंड वी स्मार्ट। तो वी बॉन्ड का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि एसडी वैन नेटवर्क को क्रिएट करना, to create the SD-WAN fabric, to facilitate, right, SD-WAN component information to all VHS router। तुम सोसाइटी में जाते हो, सोसाइटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे सोसाइटी में आए, तो मेरे सोसाइटी में क्या होगा, तुमको गेट पे रोक लेगा बंदा। सो जो तुमको गेट कीपर पे रोकेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस थिंग। सो तुम फॉर एग्जाम्पल दिस माय सोसाइटी एंड तुम एक बंदे थे, तुम सोसाइटी में आए, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या क्या गेट कीपर ने रोक लिया। सो दिस गेट कीपर इज बिहेव लाइक व्हाट, इट्स बी बॉन्ड। गेट कीपर ने तुमसे क्या पूछा, भाई कहाँ जाना है, तो तुमने बोला कि भाई मुझे जाना है सी ब्लॉक, ठीक है, मुझे लॉ से मिलना है। तो उसने अपने डेटाबेस टेबल में चेक किया, उसने अपने डेटाबेस टेबल में चेक किया, ओके सी ब्लॉक लॉ इज लिविंग इन द सी ब्लॉक, नाउ यू कैन गो। अब ये बंदा क्या होगा पता है, इससे जो कनेक्शन बनाया था, पहले क्या किया इस बंदे ने, इससे कनेक्शन बनाया गेट कीपर से, ठीक है। गेट कीपर से कनेक्शन बनाते समय क्या हुआ, उसने क्या किया, इस गेट कीपर ने इस बंदे को दे दिया किसका इन्फॉर्मेशन, मेरा इन्फॉर्मेशन देखा कि बंदा रहता है कहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एक्स वाई जी गाय एंड दिस एक्स वाई जी वांट्स टू मीट टू द लॉ, राइट। तो वो बंदा आया, गेट कीपर से सारा इन्फॉर्मेशन लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो बंदा मेरे पास आ जाएगा। तो तुमने देखा जो यहाँ पे जो कनेक्शन बना था मेरा इसके साथ, राइट, इसके साथ जो कनेक्शन बना था, दिस इज माई टेम्पोररी कनेक्शन। तो हर एक वीएचएस जो, दिस इज माई वीएचएस राइट नाउ,
तो हर एक वीएच राउटर होगा ना, वो वी बॉन्ड के साथ क्या करेगा, पहला टेम्पोररी कनेक्शन बनाएगा, और उस टेम्पोररी कनेक्शन से क्या करेगा, वो उससे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेगा, किसका, तुम्हारे पूरे के पूरे कंट्रोलर का। वंस दिस गाय विल गेट टू नो अबाउट ऑल द कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा, इस टनल को टर्मिनेट करेगा, दिस टेम्पोररी टनल विल बी टर्मिनेटेड नाउ फ्रॉम हियर। अब वो क्या करेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा परमानेंट कनेक्शन बनाएगा, किसके साथ, तुम्हारे कंट्रोलर के साथ। So I can call it, right, this V1 router, right, this V1 device, it distribute all the controller information, not all the control, all the V1, sorry, V smart and V manage information to the VHS router. तो यही जो बंदा होगा, जो सारा का सारा तुम्हारा वी स्मार्ट और वी मैनेज का इंफॉर्मेशन तुम्हारे VHS को देगा। अगर ये बंदा नहीं हुआ, तुम्हारा कभी भी तुम्हारा एसडी वैन फैब्रिक अप नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक अ गेट कीपर, दिस इज द गेट कीपर गाय। तुम किसी भी लाइक किसी भी होटल में जाओ या किसी भी सोसाइटी में जाओ, तुमको गेट कीपर रोकेगा, एंड गेट कीपर से तुम्हारा काम क्या होगा, सिर्फ तुमको ये बताना होगा कि आई वांट टू मीट दिस गाय, दैट्स इट। तो तुमने वहां पे क्या बनाया, तुमने वहां पे एक टनल बनाया, दैट्स कॉल्ड एज अ टेम्पोररी टनल। once you form the temporary tunnel with the v1 router, sorry, v1 device, अगर तुमको V1 डिवाइस से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो टेम्पोररी टनल था वो डिस्कार्ड करोगे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द परमानेंट टनल विद होम द वी स्मार्ट एंड वी मैनेज। क्योंकि काम तुमको किससे है? काम तुमको इवेंचुअली तुमको वी स्मार्ट और वी मैनेज से ही है, ना कि वी बॉन्ड से। ऑल गुड। ठीक नेक्स्ट, है। नेक्स्ट इज व्हाट, माय VHS राउटर। यूजर राउटर ना, इट इज यूज फॉर डेटा प्लेन। ना ही कंट्रोल प्लेन का काम करता है, ना ही मैनेजमेंट का, ये सिर्फ डेटा प्लेन का काम करता है। इट रिसीव all information from V1 and once it terminate the V1 session, then it form permanent tunnel with V Smart and V Manage, like this. For example, this is my VHS router, or this is my V Manage, this is my V Smart, and this is my V Bond. So this guy is my V Manage, this is my V Smart, this is my V Bond. अब क्या होगा कि this is my VHS router, इस VHS के पास किसका इंफॉर्मेशन है, this guy has a information of the V bond. Okay, the V bond IP address is 101.3, for example. So this is the 101.3 IP address, right? This is the 102 IP address, and this is the 103 101 IP address. जब VHS के पास किसका इंफॉर्मेशन है, V bond का 103 का। जब ये बूटअप होगा, जब ये बंदा बूटअप होगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास किसका इंफॉर्मेशन है, या जब तुम सुबह उठ के उठते हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे मैं मिरर पे जाके लिख दूं यू हैव टू मीट दिस गाय, तो तुम उसी से मिलोगे ना। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, तो तुम किसी से नहीं मिलोगे, राइट?
अगर मैं मिरर पे जाके लिख दूं कि यू हैव टू मीट दिस गाय, तो तुम उसी बंदे से मिलोगे। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, ये जब बंदा उठा, सुबह उठ के उठा, इसको मैंने क्या लिखा, भाई तुमको मिलना किससे, वी वांट से। ये बंदा क्या करेगा, इज नॉट गोइंग टू मेक अ वन टेम्पोररी टनल टू द वी वांट। अब ये क्या करेगा, इस टेम्पोररी टनल, दिस टनल इज कॉल्ड एज अ डीटीएलएस टनल। विल सी दैट व्हाट इज द यूज ऑफ डीटीएलएस, डोंट वरी अबाउट। देखो, या तो ये डीटीएलएस टनल फॉर्म करेगा या तो टीएलएस करेगा। अब मैं तुमको एक बात बता दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। ये जो तुम्हारा डीटीएलएस है ना, जो यूडीपी बेस्ड होगा, और मैं जो टीएलएस है ना, वो टीसीपी बेस्ड होगा। अगर तुमको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, इफ यू रियली वांट टू लर्न दिस टू टर्न इन वेरी वेरी डिटेल, तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, तुमको फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द एसएसएल वीपीएन। मैं क्यों बोल रहा हूँ एसएसएल वीपीएन सीखने के लिए, बिकॉज जो तुम्हारा एसएसएल वीपीएन का एडवांस वर्जन है ना, वो टीएलएस ही है। एसएसएल वीपीएन का एडवांस वर्जन जो है वो तुम्हारा टीएलएस ही है। तो ये जो टनल बनाता है ना, ये जो टनल बनाएगा, ऑफ कोर्स दिस टनल इज सिक्योर टनल, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ। किसका, सारे के सारे कंट्रोलर का। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे कंट्रोल का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो दिस टनल शुड बी सिक्योर। सो आइदर दिस टनल शुड बी सिक्योर बाय द डीटीएलएस और आइदर द टीएलएस। तो तुम या तो डीटीएलएस यूज करो या तो टीएलएस यूज करो। डिफॉल्ट जो चला जाता है वो डीटीएलएस पे चला जाता है। अब मैं तुमको एक सिनेरियो दिखाऊंगा इन फ्यूचर इन द क्लासेस, राइट, कि कहाँ पे तुमको टीएलएस फॉर्म करना चाहिए, कहाँ पे डीटीएलएस। ऐसा नहीं है कि यार डीटीएलएस हो तो डीटीएलएस ही चलने दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर याद होगा, आईपीसेक में फेज वन में दो मोड होते हैं, राइट। इन द फेज वन वी हैव अ टू मोड, आइदर वी कैन रन विद द एग्रेसिव मोड एंड आइदर वी कैन रन विद द मेन मोड। तो मेन मोड में 6 पैकेट एक्सचेंज होता है, एग्रेसिव में 3 पैकेट एक्सचेंज होता है, राइट। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह हम मेन मोड ही चलाते हैं, और ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह हम एग्रेसिव मोड ही चलाते हैं। डिपेंड ऑन द सिनेरियो। तो सेम सिचुएशन इज राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि हर जगह डीटीएलएस ही चलेगा और टीएलएस ही चलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, कि तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा है। बट हाँ, ये अगर मैं बेसिक डिफरेंस बनाऊं तो दिस टनल इज बेस्ड ऑन द यूडीपी एंड दिस टनल इज बेस्ड ऑन द टीसीपी। और टीएलएस क्या है, इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट, एसएसएल बीपीएन। So once this guy is gonna form the DTLS tunnel between the V edges to the V mount, और ये क्या करेगा, V mount क्या करेगा, and this tunnel is a temporary. So I'm taking example, this is my DTLS tunnel and this tunnel is a temporary. तो V mount का काम क्या होगा, वी वन का काम होगा कि इसके बारे में बताना, किसके बारे में, वी स्मार्ट के बारे में एंड वी मैनेज के बारे में। सो नाउ दिस गाय इज गोना शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, hey listen, here is your v manage and v smart. So once the v edges will get to know that okay, the v smart devices 101 or 2 and the v manage devices 101 or 1, now what, I'm going to destroy this tunnel. Now I'm going to form the permanent tunnel with whom, ye, and now this. So this is my again DTLS and TLS tunnel, but this tunnel is a permanent. अब बात आती है कि ये टनल परमानेंट क्यों है और ये टनल परमानेंट क्यों नहीं है. Why this tunnel is a temporary and why this tunnel is a permanent? Anyone has the answer of this question? सिक्योरिटी पर्पस से सर। क्या 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 क्या? सिक्योरिटी पर्पस से या नहीं? सिक्योरिटी पर्पस से. नहीं, ये जब जब वीएच फर्स्ट टाइम बूट अप होता है तो ये जो डीटीएलएस फॉर्म होता है वी बोर्ड से, वो केवल एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वी मैनेज और वी स्मार्ट की, क्योंकि इसका सारा कम्युनिकेशन तो वी मैनेज और वी स्मार्ट से ही होना है। तो इसलिए केवल ये टेम्परेरी फॉर्म करता है कि उनसे कनेक्टिविटी के लिए, ऑथराइजेशन के लिए।
एग्जैक्टली सो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब तुम गेट की सोसाइटी के अंदर आते हो तो सोसाइटी के अंदर होता क्या है? तुमको गेट कीपर से थोड़ी ना मतलब है, तुमको बात किससे करना है? कंसर्न पर्सन से, राइट? तुमको गेट कीपर से क्यों परमानेंट परमानेंट बनवाने की जरूरत पड़ेगी? कोई सेंस नहीं बनता है। वेस्टेज ऑफ लाइक रिसोर्सेस। अगर मैं इससे परमानेंट टनल बनाऊंगा, देन वी हैव टू मेंटेन दिस परमानेंट टनल, राइट? एंड टू मेंटेन दिस परमानेंट टनल वी नीड टू एक्सचेंज some keep alive, right? It's a wastage of bandwidth and it's a wastage of resources of my hardware. इसका काम क्या था? इसका काम था इंफॉर्मेशन देना। इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया, खत्म कहानी। So that's why this tunnel is what? This tunnel is called as a temporary tunnel and this tunnel is called a what? Permanent tunnel. And जैसे इसको परमानेंट टनल मिल जाएगा वी मैनेज से, लिसन टू मी नाउ। जैसे वी एजेस को परमानेंट टनल मिल जाएगा वी मैनेज वी स्मार्ट से, जो तुम्हारे अदर वी एजेस राउटर होंगे ना, फॉर एग्जांपल दिस अनदर वी एजेस राउटर वी हैव। ठीक है? सो दिस गाय आल्सो हैव सेम इंफॉर्मेशन, आई कैन कॉल इट द वी बॉन्ड। तो इसने भी क्या किया, पहला वी बॉन्ड से अपना रिलेशन बनाया 1 और 3 से, और दिस रिलेशन वाज टेम्पोररी। तो उसने क्या किया, परमानेंट टनल बनाया किसके साथ? वी स्मार्ट के साथ, राइट? अब नाउ दिस वीएचएस राउटर क्या करेगा? जैसे इसको परमानेंट टर्म मिल गया वी स्मार्ट और वी वैनेज के साथ, तो ये क्या करेगा? ये अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेगा, राइट? जो भी पॉलिसी और वगैरह वगैरह थे, वो सारे के सारे इस पर से आ जाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे इसको पॉलिसी वॉलिसी सब कुछ मिल गया है, नाउ दिस टू गाइस इज गोना फॉर्म व्हाट? आईपी से टनल। नहीं सॉरी, एग्जैक्टली, ये तो वो करेगा, क्या बोलते हैं, ओएमपी राउट्स क्रिएट करेगा ना। दिस गोना फॉर्म द आईपी सेक्टर। तो जो तुम्हारा ये सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा, फॉर एग्जांपल दिस बाय दिस ऑल कंट्रोलर, राइट? फॉर एग्जांपल दिस कंट्रोलर इज प्रेजेंट इज वेयर? दिस कंट्रोलर इज प्रेजेंट इन माय यूएसए, राइट? मे बी एनी डेटा सेंटर, और दिस इज माय दिल्ली, और दिस इज माय बैंगलोर। जो तुम्हारे जितने भी यूजर्स बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द यूजर्स आर सेटिंग बिहाइंड द दिल्ली, राइट? सो टेक एग्जांपल, दिस इज द यूजर आर सेटिंग बिहाइंड द दिल्ली एंड दिस इज द यूजर सेटिंग बिहाइंड द बैंगलोर, राइट? तो जब वो बात करेंगे ना, सो दे कैन टॉक टू डायरेक्टली टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? आईपी सेक्टर। सो तुम्हारा जो भी डेटा कम्युनिकेशन होगा, वट एवर योर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन दिस गाय टू दिस गाय, राइट? ऑल दिस डेटा कम्युनिकेशन विल बी सिक्योर बाय द आईपी सेक्टर। अच्छा। लो, मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न था इस आईपी सेक में, कि ये अपना सेम आईपी सेक है जो आइजा कैम्प का होता है, जो अपन यूज कर रहे हैं पहले। It's little bit different, हाँ। not same, I can call it not। देखो, सेम का मतलब मैं कैसे बता दूंगा? देखो, यहाँ पे जो की मैकेनिज्म यूज हो रही है ना, जो मतलब मैं हम्म। नॉर्मली क्या हो रहा था कि अगर तुमको याद होगा, तुम ये कमांड डिफाइन करते थे, राइट? क्रिप्टो आइजा कैम्प हाँ बिल्कुल। की CCI एड्रेस, राइट? एंड दिस एड्रेस फॉर दिस पर्सन, राइट? एंड तुम कमांड क्या यूज करते थे? क्रिप्टो आइजा कैम्प, लाइक क्रिप्टो, सॉरी, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर की, तुम ये यूज करते थे। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइक प्री शेयर की, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ द PSK, दैट्स कॉल्ड एज अ प्री शेयर की, आई एम गोना यूज द PKI, ठीक है, ये करते हैं। या पब्लिक वैसे कमांड तो कुछ चलानी ही नहीं है, केवल एक दो कमांड कमांड है, तो पूरा कुछ है, कर देता है। हाँ। बट सेम हम्म। IPsec विल बी सेम, सेम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, सेम डिक्रिप्शन, नथिंग इज डिफरेंट, नथिंग। सेम वही IPsec है। ओनली द थिंग इज दैट कि तुम यहाँ पे प्री शेयर यूज कर रहे थे, यहाँ पे तुम PKI यूज करोगे। और यहाँ पे अपने को सारी मैनुअल करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं करनी नहीं, पड़ेगी। यहाँ पे तुमको कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। Once this guy will हम्म। get the all the information with the all VHS, now the VHS is going to form the IP sector now। तो इसमें भी जो दोनों के बीच में आईपी से टनल हो रहा है इसमें भी वी बॉन्ड आता है कि मतलब नहीं नहीं नहीं, इसमें कैसे? कुछ नहीं, इसमें कंट्रोलर का कोई नहीं है। क्योंकि खत्म। ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी तो वी बॉन्ड देता है। देखो, वीबॉन ने क्या किया, वीबॉन ने वी स्मार्ट और वी मैच का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया VHS को, राइट? VHS के पास सारा वी कंट्रोल का इन्फॉर्मेशन आ गया। अब वो कंट्रोल से काम क्या होगा?
कंट्रोलर का काम क्या होता है? पॉलिसी देना, हम्म। राउट एक्सचेंज करवाना, खत्म कहानी, राइट? यही होगा। जब इसने करवा दिया तो इसके पास राउट आ गए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे राउट एक्सचेंज होगा? For example, this guy VHS router, right? This VHS has a 10.1.1.0/24 information, and this guy also have a 10.1.2.0/24 info. These are my LAN information. अब क्या हुआ, जो तो वहाँ वी स्मार्ट डिवाइस है ना, ये टोटली किसकी तरह काम करता है? बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर की तरह। तो वहाँ जो हम्म। बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर है उसकी तरह ये काम करता है। अब हम्म। राउट रिफ्लेक्टर का काम क्या था? अगर तुमको याद होगा, राउट रिफ्लेक्टर का काम ये था बीजीपी में कि लाइक फॉर एग्जांपल, दिस माय राउटर नंबर 1, दिस माय राउटर नंबर 2, and this my router number 3, right? This is the 1.0.0/8 information. तो route reflector काम क्या था कि this is my server, RR server, and this is my RR client. RR client क्या करता था? अपना इंफॉर्मेशन सर्वर को देता था, और सर्वर क्या करता था? ये इंफॉर्मेशन को इसको रिफ्लेक्ट कर देता था, राइट? R1 क्या करता था? क्लाइंट क्या करता था? अपना इंफॉर्मेशन सर्वर को देता था, और सर्वर क्या करता था? अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्लाइंट को रिफ्लेक्ट कर देता था। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द वी स्मार्ट। ये क्या करेगा? वीएचएस राउटर डायरेक्टली इसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकता। मैंने क्या बताया था कि कंट्रोल प्लेन कौन काम करता है यहाँ पे? वी स्मार्ट। दिस इज माय कंट्रोल प्लेन। एग्जैक्टली यही तो डाउट था ना, कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल सिक्योरिटी दे रहा है वी बॉन्ड, है ना, और सारे राउट्स वगैरह शेयर कर रहा है वी स्मार्ट, फिर इनके बीच में टनल फॉर्म हो रही है डेटा प्लेन टू डेटा एक मिनट, प्लेन। एक मिनट। तो राइट। सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे? कंट्रोल प्लेन वी स्मार्ट के पास। तो ये बंदा वीएचएस राउटर अपना इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। जो ये इंफॉर्मेशन, दिस इज माय राउट इंफॉर्मेशन, राइट? दिस राउट इंफॉर्मेशन और ये राउट इंफॉर्मेशन, ये कभी भी एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि दिस गाइस इज व्हाट, दिस इज माय प्योर डेटा प्लेन डिवाइसेस। दिस इज अगेन डेटा प्लेन डिवाइस। तो डेटा प्लेन का काम क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, आईपी सेक फॉर्म करना, खत्म कहानी। ये बंदा क्या करेगा? अपना इंफॉर्मेशन पहले किसको देगा? वी स्मार्ट को। तो वी स्मार्ट के पास किसके इंफॉर्मेशन आ गए? 10.1.1.0/24। अब ये वी स्मार्ट क्या करेगा? वट एवर द, तुम पॉलिसी किसके साथ लगाते हो? पॉलिसी मतलब क्या? तुम्हारा राउट मैनिपुलेशन हो गया, राउट फिल्टरिंग हो गया, तुम पॉलिसी राउट के साथ लगाते हो ना। तो वट एवर द पॉलिसी विल अटैच विद दिस गाय, राइट? जो भी पॉलिसी इसके साथ लगे होंगे, तो क्या करेगा पता है? इस पे पॉलिसी अप्लाई करेगा। and now this guy is behave like a route reflector. So now this guy is going to send the all information to the another VHS router. ठीक है। तो राउट इंफॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ? राउट इंफॉर्मेशन हैज डन थ्रू द वी स्मार्ट। बट डेटा प्लेन किसके थ्रू होगा? डेटा प्लेन मेरा डायरेक्टली होगा यहां से यहां। मेरा कंट्रोल किसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है? थ्रू द वी स्मार्ट, बिकॉज मेरा कंट्रोलर कहीं और प्रेजेंट है, यूएसए में, राइट? बट मेरा डेटा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? इसके थ्रू। सेम वे, अगर इस बंदे को, टेक एग्जांपल, अगर इस बंदे को अपना राउट देना है, किसको? इसको। तो ये अपना राउट पहले किसको देगा? इसको, वी स्मार्ट को। वी स्मार्ट क्या करेगा? इस राउट को, जो भी लर्न हुए राउट को क्या करेगा? पॉलिसी अप्लाई करेगा, अगर पॉलिसी कन्फिगर है तो। इफ पॉलिसी इज कन्फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर राउट, इफ पॉलिसी इज कन्फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर राउट, तो वो पॉलिसी लगाएगा। अगर नहीं है तो इट्स फाइन, राइट? अगर नहीं है तो इट्स फाइन। अगर पॉलिसी है तो वो पॉलिसी लगाएगा। एंड नाउ दिस गोना सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू whom? Another VHS. So ठीक and है। eventually क्या हुआ कि तुम्हारे पास राउट एक्सचेंज हो चुके होंगे। So this guy is a 10.1.2.0/24 information, and this guy also gonna store the this information. तो इससे बेनिफिट क्या हो रही है? बेनिफिट ये हो रही है कि वी हैव अचीव द कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। और कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग अचीव करने से फायदा क्या हुआ? कि सारा का सारा मैनिपुलेशन
मैं कहाँ से कर रहा हूँ, वी मैनेज से और वी स्मार्ट से। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू एनी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पॉलिसी पुश करनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ कि एनटीपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एनटीपी का कॉन्फ़िगरेशन मैं वी मैनेज पे करूंगा। ये क्या करेगा, वी स्मार्ट को देगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच प्रोटोकॉल, नेट कॉन्फ। हम्म। और वी स्मार्ट क्या करेगा, वॉट एवर द पॉलिसी राइट कॉन्फ़िगरेशन इज गोना पुश टू द ऑल दिस गाय। तो फिर वी मैनेज ने टनल क्यों बनाया है डेटा ये वी एजेस के साथ, व्हेन इट हैज टू गिव द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आल्सो विद टू वी स्मार्ट? सम कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन वी स्मार्ट के थ्रू, ओनली द पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन राउट एक्सचेंज। नहीं, वो तो वी एजेस के थ्रू जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वी मैनेज, जैसे एनटीपी इंफॉर्मेशन बोला तुमने, थ्रू नेट कॉन्फ इट विल गिव टू वी स्मार्ट एंड देन टू एजेस राउटर। कुछ पॉलिसीज ऐसे नॉट नॉट कुछ पॉलिसी, जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे होंगे जो उसको वी स्मार्ट के थ्रू देने की जरूरत नहीं है मुझे, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जाएगा वीएजेस को। लाइक लाइक विल सी दैट, लाइक व्हाट एसएनएमपी हो एसएसएच, गया, एसएनएमपी हो गया। एसएसएच भी तो इधर से होगा ना, डायरेक्ट वी मैनेज से। एसएसएच इज अ डिफरेंट थिंग, एसएसएच इज द मैनेजमेंट प्लेन। ओके, वो हाँ। डिफाइन कौन करता है कि कौन सा, लाइक वो कहाँ डिफाइन है, लाइक वी मैनेज से कौन सा डायरेक्टली जाएगा वी एजेस को और कौन सा वी स्मार्ट को व्हाट, देना पड़ेगा? अगर मैं सिंपल से बात करूं तो व्हाट एवर द पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन यू हैव, सारा का सारा पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन जाएगा वी स्मार्ट के थ्रू, और सारा का सारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जाएगा वी मैनेज के थ्रू। ओके। और इवेंचुअली इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक यू नो, परमानेंट टनल मेरा इसके लिए बना है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे हेल्थ चेकअप करना है, ठीक है, किसका, इस डिवाइस का, तो मैं कैसे करूंगा, मैं वी स्मार्ट पे बैठ के करूंगा या वी मैनेज पे बैठ के करूंगा? वी वी मैनेज पे ही मैनेज पे होगा, कर सकते हैं। मॉनिटरिंग वी इसी मैनेज पे की। ही करना है मुझे, वी मैनेज पे ही करना है, वी कर नहीं सकते, वी मैनेज पे ही करना है, तो वी मैनेज पे मैं कैसे करूंगा, मुझे ये बताओ। मेरे पास कनेक्टिविटी होगी तब ना करूंगा। हाँ। अंडरस्टूड ओके। ना? जैसे मेरा राउट एक्सचेंज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये डिस्ट्रॉय भी हो गया ना, अगर मेरा ये पूरा का पूरा कंट्रोलर डाउन भी हो गया, भाई ये जो मेरा कम्युनिकेशन है ना, मस्त चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होना। हाँ, ये सेपरेशन हो गया ना इनका, डेटा प्लेन का कंट्रोल प्लेन का, इसी चक्कर से ये डायरेक्टली चलेगा। और अगर इनके बीच की जैसे आईपी से एक टूट गया टनल, कोई दिस इज द रीजन से खत्म ब्यूटी हो गया। ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीकपलिंग ऑफ मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। तुम्हारा अगर मैनेजमेंट भी डाउन हो गया, कंट्रोलर भी डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा डेटा मस्त जा रहा है यहाँ से यहाँ। बट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर जाते रहेगा, थोड़ा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है क्या टाइमर था, शायद 12 आवर्स होता है। यू कैन मैनिपुलेट दिस थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल शो यू। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन भर भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, मान लो ये मेरा कंट्रोलर अप आ गया, मान लो ये मेरा कंट्रोलर अप आ गया, तो जैसे ही मेरा कंट्रोलर अप आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा पता है, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, जो भी मेरे अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगे वीएच पे, वो क्या करेगा, वीएचएस लर्न कर लेगा। और जैसे ही वीएचएस लर्न कर लेगा सारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अब वो क्या करेगा, उसके बेसिस पे पैकेट फॉरवर्डिंग करेगा, जो भी पॉलिसी नए आएंगे। तो ये तुमको बेनिफिट दे रहा है कि अगर ठीक है, अगर बाई चांस कंट्रोलर डाउन भी हो गया ना, तो आई स्टिल हैव अ कम्युनिकेशन। कूल। Now, so this is all about the components. Let me go through the some theory part through the box. On this one, I think so. This one. So कल एक चैप्टर देख लिया था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें सारा सारा ट्रेडिशनल राउटिंग के बारे में बता रखा था। Now let me go through you the second chapter. फिर ये लो, ये बुक भी शेयर कर देना एक बार। मैंने सारा कुछ अपडेट कर दिया है, मैंने लिंक नहीं दिया। आई नीड सारा का सारा मुझे मेल आईडी चाहिए, सो यू गाइस ठीक शेयर है। योर मेल आईडी, मैं दे दूंगा। ठीक है।
हमारे पास नुआज एसडीवैन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो ये अलग अलग जगह दिखाता है ना प्लेन, इसमें तेरे सेपरेशन है, उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों प्लेन दिखा देता है। अच्छा, okay, हम्म, have a look at this one. In traditional network, what happened? The management plane, data plane, and control plane are all on the same router, and together they facilitate the communication within the network, right? जो तुम्हारा लाइन कार्ड होता था इन ट्रेडिशनल राउटर, व्हाट हैपेंड, द लाइन कार्ड समझते हो ना, जो तुम्हारे इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करता था, तुम्हारे डेटा प्लेन को हैंडल करता था, और सीपीयू मॉडल व्हिच हैंडल द राउटिंग टेबल, दैट्स कॉल्ड एज अ कंट्रोल प्लेन एंड सीएलआई एज वेल एज, एंड जो तुम्हारा मैनेजमेंट प्लेन था एसएसएच एंड लाइक तुमको मैनेज और टेलनेट, दैट्स गोइंग टू हैंडल द मैनेजमेंट प्लेन। तो ये ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम कब आया पता है? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सपोज 6000 डॉट्स, राइट, whenever there is a change in the network, देखो ये 6000 आउट, इट्स अ कॉमन फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत कॉमन थी, ठीक है। चीजों को तुमको अगर एसडी वैन को ध्यान से समझना है ना कि क्या है एसडी वैन, तो तुमको बड़ा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा एकदम तुम 10 राउट 20 राउट को लेके एग्जांपल नहीं ले सकते हो। सो ये व्हाट ही सेड, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सपोज 6000 राउट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नेटवर्क, राउटर विल हैव टू प्रोसेस दिस राउटिंग अपडेट्स फॉर ईच दिस राउट्स पोटेंशियली। हर राउटर क्या करेगा, तो ये याद है ये टोपोलॉजी, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, there's a one loop back behind the 6.0.0.0। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल में, इसके पास भी कंट्रोल प्लेन थे, इसके पास भी डेटा प्लेन थे, इसके पास भी मैनेजमेंट प्लेन थे, इसके बाद सी था, डी था, एम था, सी डी एम, कंट्रोल डेटा मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ कि अगर मेरा ये लूप बैक चेंज हुआ, अगर मेरा ये लूप बैक फ्लैप होता है, फ्लैप नॉट चेंज, फ्लैप, तो क्या होगा, इसकी सीपीयू हाई होगी, 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 इसकी सीपीयू हाई, क्योंकि हर एक बंदा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यही तो था कंट्रोल प्लेन। अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर मेरा नेटवर्क डाउन हुआ ना, तो सिर्फ कंट्रोलर करेगा, जो कि वी स्मार्ट है। तो पहले क्या हो रहा था ट्रेडिशनल में, कि सारा का सारा लोड किस पे चला जा रहा था, सारा का सारा लोड चला जा रहा था तुम्हारा एक सिंगल राउटर पे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस दिस अपडेट। और एडिशनली जो पहले क्या क्या हो रहे थे, सारा का सारा बॉक्स टू बॉक्स कन्फिग्रेशन हो रहा था, राइट, इट्स राउटर बाय राउटर बेसिस। तो उसमें क्या हो रही थी, राउट अगर तुम ऑफकोर्स यार तुम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते बैठोगे, मैंने क्या वीटीपी का एग्जांपल लिया था कल, मैनेजमेंट प्लेन, सॉरी वीटीपी का एग्जांपल लिया था, टू मैनेज द लेयर टू डोमेन। वीटीपी में क्या होता था, वी सर्वर था, क्लाइंट था, ट्रांसपेरेंट था। सर्वर क्या कर रहा था कि एक सर्वर पे तुम वीलैन 10 बनाते थे, तो वो वीलैन 10 पूरे क्लाइंट पे चला जाता था। तो वो ऑटोमेशन नहीं था, वो ऑटोमेशन नहीं था, बट मैंने क्या किया था, उसको सेंट्रलाइज कर दिया था। अगर वीटीपी नहीं होता, सोचो वीटीपी नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं वीटीपी नहीं होता ना, तुमको मैं बोलता कि यार एक काम करो, 500 डिवाइस पे जाके ना वीलैन कॉन्फ़िगर करके आ जाओ, तुम कॉन्फ़िगर कर देते, 100% तुम कॉन्फ़िगर कर देते, बट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते। एंड डूड, जहां पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, तो मिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, और मिस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है पता है, नेटवर्क डाउन होता है। So this is how the controllers we have, the V manage, we'll see that in the next class, this is the V manage, V analytics। V analytics का काम क्या होता है, देखो ये कोई कंट्रोलर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, इट्स जस्ट अ वन टूल अंडर द V manage। तो एनालिटिक्स का काम क्या होता है कि तुम एनालाइज कर सकते हो, तुम्हारा ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है, ये कर रहा है, देख सकते हो तुम सब कुछ। V बॉन्ड हो गया तुम्हारा, लाइक इट्स अ ग्लू दैट्स गोना प्रोवाइड बिटवीन ऑल द कंट्रोलर। सो इट्स अ डे वन, जो तुम्हारा डे वन का काम होगा ना, वो V1 का थ्रू होगा। और पूरा तुम्हारा ये काम क्या करेगा, ये पूरा कंट्रोलर जो हो गया, दिस इज वी स्मार्ट, राइट। तो तुम्हारा जो वी स्मार्ट, वी एनालिटिक्स, वी मैनेज, जो तुम्हारा कंट्रोलर होगा, ये तुम्हारा काम क्या करेगा, ये तुम्हारा काम करेगा डे वन से लेकर
डे एन तक। ये क्या कर रहा है, वी वांट सिर्फ डे वन का काम कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सॉरी डिवाइसेस को ऑनबोर्ड करने का काम। दिस इज द गाय जस्ट गोना ऑनबोर्ड ऑल द कंट्रोलर ऑन द फैब्रिक। So this my data like whatever the devices we have the WAN edges router, this all WAN edges router is pure like a data plane। और ये तुम्हारे हो गए तुम्हारे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो देख लो तुम्हारा एमपीएलएस कभी भी रिमूव नहीं हो रहा है। जो तुम सोचते थे कि यार एमपीएलएस तो खत्म हो जाना है एसडीएन, नहीं हो रहा है यार। एमपीएलएस इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये खत्म हो ही नहीं सकता है। खुद सोचो अगर तुम्हारा एमपीएलएस होगा, आईनेट और एमपीएलएस में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, यही तो है। आरएफसी 1918 दो टाइप के एड्रेस थे। अब मुझे बताओ कि एमपीएलएस अगर खत्म हो जाएगा तो मेरा प्राइवेट राउट कैसे एक्सचेंज होंगे? वो तो उसका अल्टरनेट भी तो हो जाएगा ना, जैसे इंटरनेट के ऊपर कर देंगे 4G LTE, अगर कोई भी मीडियम इंटरनेट होगा उस पे कर इंटरनेट देंगे। के ऊपर इंटरनेट के ऊपर कब से तेरा प्राइवेट राउट जाने लगा? नहीं, अब जब HD WAN अपन डिप्लॉय कर लेंगे फिर तो अपन यूज कर सकते हैं ना कुछ भी। क्या? मतलब ये तो मीडियम है एक तरीके से, हाँ MPLS और ये तो कोई भी मीडियम यूज कर लो। तो सारे इंटर आईनेटी तुम सारे आईनेटी यूज करो, बट इंटरनेट तुमको गारंटी देती है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की गारंटी देती है हाँ, इंटरनेट। लीज लाइन ले लेंगे ना। लीज लाइन कौन लेता है आज के डेट में? पैसे ज्यादा एमपीएलएस क्यों नहीं लेगा इंसान जो लीज लाइन लेते बैठेगा? हम्म। तो ऐसा नहीं है कि एमपीएलएस खत्म हो रही है, एमपीएलएस इज स्टिल देयर राइट। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आरएफसी 1918 प्राइवेट राउट को एक्सटेंड करने के लिए हम लाइक डीएमवीपीएन का भी यूज कर सकते हैं राइट। बट तुमको लाइक तुम डीएमवीपीएन चलाओगे तो इंटरनेट पे ही चलाओगे, तुमको प्रॉपर बैंडविड्थ की गारंटी मिल रही है क्या? लेटेंसी की मिल रही है क्या? डिले मिल रही है क्या? गारंटी नहीं मिल रही है। सो द प्योर डेटा प्लेन राइट, अगर मैं बात करूं सो पहले क्या था, डेटा प्लेन तुम्हारे उस पे होते थे लाइन कार्ड्स पे। नाउ द वैन एजेस राउटर इज गोना डील विद द डेटा प्लेन्स। सो दिस इज द वी एजेस राउटर दैट्स गोना डील विद द डेटा प्लेन। अगर मैं सिस्को की बात करूं तो वी हैव अ सिस्को दैट्स अ एक्सी राउटर। विल सी दैट, हम प्रैक्टिकल देखेंगे दोनों का, लाइक वी एजेस का और एक्सी का, दोनों का प्रैक्टिकल देखेंगे। थोड़े से चेंजेस डिफरेंस तुमको पता चलेंगे वहां पे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफरेंस है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ यार तुमको है ना आईओएस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, नॉर्मल आईओएस का, और फिर मैं बोलूँ तुमको आईओएस एक्सआर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो तुमको डिफरेंस दिखते हैं ना। लाइक सीएलआई में लाइक यहाँ पे तुम आईपी पुट कर लो, कमांड आईपी एड्रेस डिफाइन कर लो, 101 एंड सबनेट मास्क डिफाइन कर दो लाइक दिस। बट आई ऑन द एक्सआर व्हाट हैपेंड, यू हैव टू यूज द IPv4 कीवर्ड एंड एड्रेस लाइक दिस। सो थोड़े से डिफरेंस मिलेंगे कमांड वाइज, बट या वर्किंग वाइज दोनों को सेम ही है। ऐसा है कि तुम्हारा वी एजेस भी है ना इसके साथ एक्सी के साथ, दिस इज माय वी एजेस, दिस इज माय एक्सी, दे कैन फॉर्म द आईपी सेक्टर। सो ये रहा तुम्हारा। तुमको याद है मैंने बताया था एंड टू एंड सेगमेंटेशन? हाँ। देखो ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या था, अगर मैं ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करूं, तुम्हारे पास नॉर्मल आईओएस पे राइट, ऑन आईओएस राउटर इफ आई टॉक अबाउट यू हैव अ लाइक अ वीआरएल, ठीक है। अगर मैं एक्सआर की बात करूं तो यू हैव अ SDR सिक्योर डोमेन राउटर। अगर मैं नेक्सस की बात करूं तो यू हैव अ व्हाट VDC। अगर लाइक इफ आई मीन सिक्योरिटी की बात करूं, यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट।
सारा का काम क्या होता था? सेपरेशन। सारा सेपरेट करता था, बट इसका सारा का सारा कॉमन गोल क्या था पता है? ये लोकल करता था, लोकल टू द डिवाइस। ये था इसका पंगा। इसी को राइट, इसी को हमने क्या किया, एसडी वैन में थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई किया। हम एसडी वैन में जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं ना, एंड टू एंड सेग्रीगेशन, वो हेल्प अब क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, देखो मैं अभी बताता हूँ वीपीएन टर्म सुन के वो वीपीएन मत समझ लेना जो वीपीएन तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, सो ये वीपीएन तुम्हारा किसकी तरह काम करता है पता है? देखो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसडीआर एंड नेक्सस बीटीसी, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो लेट्स मी रिमूव दिस गाय, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इज लाइक द नो द वीआरएफ। सो ये तुम्हारा वीपीएन जो काम करता है ना एसडीआर में, तुम्हारा डिट्टो वीआरएफ की तरह काम करता है। So I can call it, right, in iOS you have a VRF, or in SD-WAN we have a VPN। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एक VHS राउटर है, ठीक है, ये अनदर VHS राउटर है, और in between we have a multiple transport connectivity, right, in between we have a multiple transport connectivity, MPLS 5G internet anything, और यहाँ पे मेरे सारे कंट्रोलर्स बैठे पड़े हैं। So let me do one thing, सारे मेरे कंट्रोलर्स कहाँ बैठे पड़े हैं? यहाँ पे सेंट्रलाइज लोकेशन। So all the controller we have over there, so this is my vmanage, vsmart and vbond, सारे these are my controllers। अब देखो इसके पास कुछ राउट थे, ठीक है, इस VH के पास, तो VH1 एंड VH2, ठीक है, इसके पास कुछ राउट थे, फॉर एग्जांपल आई कैन कॉल इट 10.1.2.1.0, ठीक है, देन वी हैव 10.1.2.0 एंड देन वी हैव 10.1.3.0, ठीक है, तीन राउट थे मेरे इसके पास। सेम वे आई हैव थ्री डॉट्स बिहाइंड दिस गाय, 10.1.4.0, 10.1.5.0 एंड 10.1.6.0, ठीक है। तुमको पता है क्या होगा? मैंने क्या बोला कि इन iOS we have a VRF to segregate the routing table, in SD-WAN we have a VPN to segregate the end to end, not the local to the router। तो ये क्या करेगा पता है? ये खुद का एक VPN टर्मिनल बनाएगा। ये खुद का एक VPN टर्मिनल बनाएगा, और ये खुद का एक VPN टर्मिनल। अब देखो एंड टू एंड सेगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ से यहाँ तक खुद का एक टनल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक खुद का एक एंड टू एंड सेगमेंटेशन। बट ये सारे के सारे जो एंड टू एंड सेगमेंटेशन होंगे ना, ये यूज करेंगे एक ही आईपी से। ऐसा नहीं है कि तीनों का अलग अलग आईपी सेक बनेगा, ये तीनों का तीनों एक ही आईपी सेक को यूज करेंगे। So this single IPsec tunnel, right? The single IPsec tunnel is going to carry the all the routes between the VHS router। कंट्रोलर का काम क्या होगा? कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन प्रोवाइड करना। दिस माय वी मैनेज, दिस माय वी स्मार्ट एंड दिस माय वी बॉन्ड। तो इसका काम क्या होगा? अपना काम कर देगा, बाकी जो एंड टू एंड सेगमेंटेशन होगा ये सारा यहाँ से हो जाएगा, और आईपीसेक के थ्रू ही ये पूरे के पूरे सिक्योर होंगे। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे पास 10 VPN है तो 10 तुम्हारे पास आईपीसेक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक ही बनेगा आईपीसेक। तो वही इसने बता रखा है, लाइक whatever the like interfaces you have in VLAN, like so all this information is gonna exchange, like we have a different three different VPN, so one we have a corporate, one we have a PCI, one we have a guest, right? All these three different VPNs is gonna secure by the single IP sector। तो Cisco SD-WAN solutions को पढ़ो, can support the diverse topology unique the each VPN segment, right? Data plane instantiation,
तो हर VPN अपना खुद का एक टोपोलॉजी भी बना सकता है. Yesterday I told you, right, what is the benefit of this overlay network. So you can create the accordingly, you can create the full mesh, you can create the hub and spoke, you can create the partial mesh, you can create the point to point, you can create the point to, it's totally up to you. जो तुमको बनाना है तुम्हारे SD-WAN सॉल्यूशन में. तुम्हारा ओवरले नेटवर्क का बेनिफिट्स यही तो है. ओवरले नेटवर्क का बेनिफिट क्या है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर. तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा इंफ्रा होगा, तुमको जिसमें कन्वर्ट करना है अपने टोपोलॉजी को कन्वर्ट कर लो. अंडरले को कन्वर्ट कर सकते हो क्या? जो तुम्हारा हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग होता है उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो. बट तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? केबल चेंज करना पड़ेगा. कॉस्ट पिक्चर में आएगा हमेशा. बट ओवरले में क्या पता है? कुछ भी कर लो, कॉस्ट नहीं आ रहा पिक्चर में. अंडरले को करने में तुमको ना, हार्डवेयर को करने में तुमको टाइम लगेगा, ओवरले को करने में टाइम नहीं लगेगा. जस्ट इन 1 सेकेंड, राइट, एक कमांड से पूरा पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा. So same like, yeah, I told you that the VPN is here is known as like a VRF. इसका काम क्या होता है? Segment the data plane, right? We'll see that, right, कि देखो अगर ये है कि WAN edges router है ना, यहाँ पे कुछ filtering का firewall की तरह काम करता है. So we'll see that what is the use of this thing. So right now अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, waste of time है. And again the VFD also I'm going to use right now. We'll see that later on जब हम practical करेंगे. So these are the routers that you can support with the, like, as a VHS. So तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे कंट्रोलर होंगे ना V मैनेज, so ये सारे के सारे कंट्रोलर तुम्हारे वर्चुअल है. It's not a physical, it's a virtual controller. Okay, it's a virtual controller. अब बाकी तुम्हारे जो VHS है ना, the VHS it can come into the virtual, and if you want a physical you can take a physical as well as. Okay, तो तुम्हारे कंट्रोलर्स हमेशा वर्चुअल होंगे, ठीक है. Call as VMs होंगे तुम्हारे ये सारे सारे, and these are the virtual and physical, the VHS router. So whatever the series of router we have a 100 series router is a pizza box, 1000, 2000, 5000. अगर मैं Cisco की बात करूँ, so we have a Cisco ISR 4000, ASR 10,000, right? Cisco ISR, CSRB, Vectela VH Cloud, तुम्हारा like a VHS router तुम्हारे, this is the virtual one, and all these are the physical one. We have seen that this how the things are working, right? Yesterday हमने देखा था DIA, direct internet access. So from the branch you can access the internet. You don't need to go to the data center, right? Again management plane हमने देख रखा था, like कैसे management plane काम करता है, like Cisco SD-WAN, how we introduce the manage, which is network management system. अगर तुमको याद होगा ये टर्म तुमने सुन रखा होगा SNMP में, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. नेटवर्क को पूरा का पूरा नेटवर्क को मैनेज करना, दैट्स द मीनिंग ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. सो vManage का काम क्या है? vManage कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑनबोर्डिंग, प्रोविजनिंग, पॉलिसी क्रिएशन, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग. सारा का सारा काम यहीं से तुम कर सकते हो. सो ऐसा नहीं है कि तुम एक vManage पे तुम्हारे पास मान लो 10,000 राउटर है. तो याद है एक OSPF में कॉन्सेप्ट है, एक एरिया में कितने राउटर हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द Cisco you can put the 50 to 60 router in a one area, right? ऐसा है. तो ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने SD-WAN सॉल्यूशन में आया, तुम्हारा मन किया यार मैं है ना 10,000 राउटर लगा दो, 20,000 राउटर लगा, ऐसा नहीं है. तुमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई से लाइक अगर मैं vManage क्लस्टर की बात, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल vManages है. 3 vManage. 3 हम लोग इसलिए यूज करते हैं, राइट? हम लोग हमेशा ऑड नंबर यूज करते हैं. क्यों करते हैं? टू अवॉइड द स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो.
So always your V manages, right? अगर तुम्हारा क्लस्टर में होगा, in a single cluster made of the 3 or more V managed NMS, but must always be a odd number to avoid the split variance scenario. Split variance scenario हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी. तुम्हारे इट्स नॉट ओनली विद द SD-WAN सॉल्यूशन रूल. अगर तुम्हारा ACI भी तुम कर रहे हो ना, डेटा सेंटर, तुम्हारा डेटा सेंटर में जो कंट्रोलर है एपिक, तो अब एपिक भी है ना, तुम्हारा ऑड में ही होना चाहिए, इवेंट में नहीं होना चाहिए. इट इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द avoid the split variance scenario or data sharding. We'll discuss this thing later or not now कि क्या होता है ये सब चीजें, क्योंकि अभी डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता, वी बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स. सो अगर तुम देखो, एक तुम्हारा जो वी मैनेज है ना, इच क्लस्टर, सॉरी, एक जो वी मैनेज क्लस्टर है तुम्हारा, अप टू 6000 मैनेजेस को मैनेज कर सकता है. मतलब तुम्हारा एक वी मैनेज 2000 को मैनेज करेगा मैनेजेस को. So this is how we have seen that, like ऐसे ही तुम्हारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा. कंट्रोल प्लेन हमने डिस्कस कर लिया. दिस इज हाउ लाइक वी स्मार्ट इज गोना डील विद द कंट्रोल प्लेन. इट्स अ ब्रेन ऑफ द सिस्को SD-WAN फैब्रिक. ब्रेन क्यों बोलते हैं? तुम्हारा कंट्रोल प्लेन ही तो ब्रेन होता है, CPU. So OMP हमने डिस्कस नहीं किया, so leave it the OMP right now. We'll discuss later on. So this is how the, if you see, तुमने वी स्मार्ट पे तुम्हारे पॉलिसी आए, ठीक है, और वी स्मार्ट ने क्या किया, पॉलिसी को उसको दिया मैनेजर्स को, एंड नाउ द मैनेजर्स हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. हमने ओएमपी को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, सो लीव इट दिस थिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी ओएमपी को डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बना था मेरे अकॉर्डिंग. वो बहुत कंफ्यूजन करता, बिकॉज इट्स टोटली अ डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल. जैसे तुमने ओएस पे पढ़ रखा है, ये जरूर पढ़ रखा है, सेम वे तुम्हारा ओएमपी है. ओएमपी जस्ट सिमिलर टू द बीजीपी अगर मैं बात करूं. खत्म है, इतना ही है. So this is all about the Cisco SD-WAN, guys, the components. Again, I just gave you the overview. हमने practical नहीं देखा इसका. So in the next class, we'll see the all the practical of the SD-WAN components. वो कैसे deploy होंगे, कहाँ पे तुम deploy, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी deploy कर दो अपने अकॉर्डिंग. तुमको rules follow करने पड़ेंगे बहुत सारे. Again, it's a overall network. You have to follow the huge number of rules. All clear? Anyone has a question, you can ask me now about the today class and yesterday class. मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे इंफॉर्मेशन. सो बाय, मैं अभी इसको भी अपलोड करता हूँ सारे टुडे क्लास को. देन यू विल गेट द सारे बुक्स एंड व्हाटएवर द नोट्स आई हैव. सो ऑल द वीडियोस you will see in this drive SD-WAN, and you will see like this way SD-WAN day 1. कल 3 पार्ट में वीडियोस बने थे. सो day 1 part 1, day part 2 part 3, and here you will get the all the docs. So I need you guys all the, like, email address, so you can put your email address in the group, or Amit के साथ share कर देना. Amit will share you all the draft to all of you guys. Law, please add me. हाँ हाँ, मैं करवा देता हूँ. चलो ठीक है guys, all done. So see you in the next weekend, right? Next weekend तक lab भी तैयार हो जाएगा, so you can do the practice of all the SD-WAN on the racks as well as, okay, if you need to rack access, ask to the Amit. Amit तुमको rack access का सारा दे देगा, so you can do the each and every lab on the rack as well as, okay, and we'll start the from the next week, okay? So same timing 8:30, okay, Saturday Sunday. Okay, thanks. Okay, and for the if you want to recap the same class, then Amit said एक रात में बैच स्टार्ट करेगा, so you can recap in the night as well. Okay, चलो, goodbye, bye bye. Thank you, Lo. Bye. Thank you, sir.